गुड आफ्टरनून बेटा। Good afternoon, sir. वेरी गुड आफ्टरनून। मेरा आइडिया सही था, आज लास्ट लेक्चर है बेटे, गेस्ट फैकल्टी का सिर्फ आज तक है। तो टुडे इज द लास्ट लेक्चर। इसके बाद आपको खुद पढ़ना है, वो अपने मेहनत से पढ़ना। वो कभी कोई दिक्कत हो किसी तरीके की, आप फोन कर सकते हैं, मेरा नंबर है ही आप लोगों के पास। आप मेरे से कुछ भी अपना मेडिसिन में जानकारी दे सकते हैं। कल गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग का बेटे मैंने शुरू किया था, और कहाँ तक हो गया था बेटे? अपर जीआई ब्लीडिंग। हेलो। सर कॉजेज ऑफ लोअर जीआई ब्लीडिंग चल रहा था, डायवर्टिकुलर डिजीज हो गया था। हाँ, डायवर्टिकुलर डिजीज हो गया ना, यानी यस लोअर सर। जीआई ब्लीडिंग। यस सर। सो रिगार्डिंग लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, कल स्टार्ट किया था जीआई ब्लीडिंग, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग कहाँ कहाँ से ब्लीडिंग होती है, क्या क्या इसके कॉजेज हैं। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया था हम लोगों ने, अपर जीआई ब्लीडिंग एंड लोअर जीआई ब्लीडिंग। अपर जीआई ब्लीडिंग हो गया। हेलो, हाँ बेटा, बेटा। So today's topic is lower GI bleeding, lower gastrointestinal bleeding. इसमें सबसे पहला कॉज कौन सा है? डायवर्टिकुलर डिजीज। डायवर्टिकुलर डिजीज, this involves the development of small bulging pouches. This involves the development of small bulging pouches, pouches, pouches in the digestive tract, which is called diverticulosis. Which is called diverticulosis. If one or more of the pouches becomes inflamed, if one or more of the pouches becomes inflamed or infected, it is called diverticulitis. It is called diverticulitis. Second cause is inflammatory bowel disease. Inflammatory bowel disease, IBD. Inflammatory bowel disease, इसमें क्या होता है? This include ulcerative colitis. This causes ulcerative colitis,
which causes inflammation, and source मैंने ulcer, SORE, source in the colon and rectum, which causes inflammation and source in the colon and rectum, and Crohn's disease, Crohn, CROHNS, and Crohn's disease. And inflammation of the lining of the digestive tract, and inflammation of the lining of the digestive tract. The third cause is tumors. Non-cancerous, that is benign. Non-cancerous or benign, 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 or cancerous tumor, of the esophagus, stomach, colon, or rectum, can weaken the lining of the digestive tract and causes bleeding. फिर सुन लीजिए, ट्यूमर्स में नॉन कैंसरस क्या हो गया, benign or cancerous tumors of the esophagus, stomach, colon or rectum can weaken the lining of the digestive tract and causes bleeding. Next cause is colon polyps. Colon polyps, POLYPS. Colon polyps, small clumps of cells that form on the lining of colon can cause bleeding. Most are harmless, but some might be cancerous, or can become cancerous if not removed. Or can become cancerous if not removed. Next cause is hemorrhoids. Hemorrhoid की spelling है HAEMORRRHOIDS. हेमरॉइड जानते होंगे, पाइल्स को बोलते हैं हेमरॉइड्स. These are
These are swollen veins, swollen, SWOLLEN. So these are swollen veins in anus or lower rectum. These are swollen veins in anus or rectum, similar to the varicose veins. Similar to the varicose veins. Next is anal fissure. ये एनल फिशर होता है, इसमें एनल कैनाल के अंदर म्यूकस कवरिंग में हल्की सी कभी कभी एब्रेजन हो जाता है, एक लाइनिंग हो जाती है। वो क्यों हो जाती है? मतलब छोटा सा घाव हो जाता है। उसका मेन कारण क्या है? कॉन्स्टिपेशन। स्टूल कभी कभी इतना हार्ड हो जाता है कि एनस के पैसेज में, यानी एनल कैनाल के अंदर, वहाँ की म्यूकोजल लाइनिंग में हल्का सा क्रैक्स आ जाता है। इसको क्या कहते हैं? फिशर। फिशर मैंने दरार। और इसमें होगा क्या? कैसे इसको पहचानेंगे? जब भी इवैक्यूएशन के समय, स्टूल पासिंग के समय सीवर पेन होती है और साथ में थोड़ा सा ब्लड आता है, इसको क्या कहते हैं? एनल फिशर। फिशर की स्पेलिंग है FISSURES, fissures, anal fissures. So these are small tears. So what is anal fissure? These are small tears, TEARS, tears in the lining of the anus. And last is proctitis. Proctitis, 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 proctitis. ये क्या चीज होते हैं? inflammation of the lining of the rectum, inflammation of the lining of the rectum can cause rectal bleeding. Inflammation of the lining of the rectum can cause rectal bleeding. अब इसके बाद आ जाता कॉम्प्लिकेशन। इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है? किसकी? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग की। जीआई ब्लीडिंग का कॉम्प्लिकेशन क्या है? सो कॉम्प्लिकेशन, 3 कॉम्प्लिकेशंस मेन है। कभी कभी इतनी ब्लीडिंग होती है कि पेशेंट शॉक में चला जाता है। दूसरा हो गया एनीमिया। तो फर्स्ट इज शॉक, सेकंड इज एनीमिया, एंड थर्ड इज डेथ। शॉक, एनीमिया एंड डेथ। एक क्वेश्चन ऐसे मेरे माइंड में अभी आया बैठे है, मेडिसिन और सर्जरी में क्वेश्चन वैसे इस साल आपके इम्पोर्टेंट, काफी इम्पोर्टेंट लग रहा है। शॉक का अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। शॉक। नेक्स्ट इज प्रिवेंशन। टू प्रिवेंट अ GI ब्लीडिंग, टू प्रिवेंट अ GI ब्लीडिंग हमें क्या क्या सावधानी थोड़ा सा लेना चाहिए? लिमिट द यूज ऑफ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। पेन किलर कम से कम खाना चाहिए। लिमिट्स द यूज ऑफ NSAIDs। NSAIDs फुल फॉर्म क्या हो गया? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। दूसरा, लिमिट द यूज ऑफ एल्कोहल। लिमिट द यूज ऑफ एल्कोहल। Smoking should be quit. If patient is suffering from GERD, capital G, capital E, capital R, capital D.
If patient is suffering from GERD, GERD, then follow the doctor's instruction for treating it. Then follow the doctor's instruction for treating it. Next, write down diagnosis. कैसे diagnose करेंगे? Take a medical history. Take a medical history, including a history of previous bleeding, including a history of previous bleeding, and conduct a physical examination, and conduct a physical examination, and possibly order test. And the test might include, testing में क्या क्या करते हैं, and the test might include, पहले कौन सा लेंगे? Blood test. First one is blood test. Patient may need a complete blood count, CBC. Patient may need a complete blood count, CBC. और क्या करते हैं? A test to see how the fast blood clot, a test to see how fast the blood clot and a platelet count. A platelet count, कितना होता है platelet count? 1.5 लाख से 4 लाख cells per cubic mm. A platelet count, और इसके अलावा क्या करते हैं? And liver function test. तो ब्लड टेस्ट में क्या किया? Patients may need a CBC, complete blood cell count, a test to see how fast blood clots, platelet count, and the liver function test. इसके बाद क्या टेस्ट करते हैं? स्टूल एग्जामिनेशन, स्टूल टेस्ट, analyzing the stool, analyzing the stool can help, analyzing the stool can help determine the cause of occult bleeding, can help determine the cause of occult, OCCULT, can help to determine the cause of occult bleeding. Next, nasogastric lavage. Nasogastric lavage. lavage की स्पेलिंग है LAVAGE. LAVAGE. Nasogastric lavage. A tube is passed through the nose into the stomach. A tube is passed
through a nose into the stomach and to remove the stomach contents This might help determine the source of bleeding. This might help determine the source of bleeding. Next test is upper endoscopy. This procedure uses a tiny camera, tiny means छोटा सा TINY. This procedure uses a tiny camera on the end of the long tube. This procedure uses a tiny camera on the end of a long tube which is passed through the mouth, to examine upper gastrointestinal tract. Next is colonoscopy. This procedure uses colonoscopy. This procedure uses a tiny camera. This procedure uses a tiny camera on the end of a long tube. This procedure uses a tiny camera on the end of a long tube which is passed through rectum to examine large intestine and rectum. फिर सुनिए, colonoscopy. This procedure uses a tiny camera on the end of a long tube which is passed through the rectum to examine a large intestine and rectum. Then is capsule endoscopy. In this procedure, swallow मैंने निकलना, SWALLOW. In this procedure, swallow a vitamin size capsule with a tiny camera inside. उस कैप्सूल के अंदर क्या है? एक छोटा सा कैमरा लगा रहता है. With a tiny camera inside,
The capsule travels through a digestive tract. The capsule travels through a digestive tract, tracking thousands of pictures, tracking thousands of pictures that are sent to the recorder, wear on a belt around the waist. Wear on a belt around the waist. This enables to see inside the small intestine. Next is flexible sigmoidoscopy. Flexible, F-L-E-X-I-B-L-E, flexible. Sigmoido, S-I-G-M-O-I-D-O-S-S-C-O-P-Y. Flexible sigmoidoscopy. A tube with a light and camera is placed. A tube with light and camera is placed in the rectum. A tube with light and camera is placed in the rectum. A tube with light and camera is placed in the rectum to look at rectum and large part and the last part of the large intestine that leads to rectum, that is sigmoid colon. Next is balloon, B-A-L-L-O-N, balloon assisted enteroscopy. Balloon, B-A-L-L-O-N, balloon assisted, A-S-S-I-S-T-E-D, a balloon assisted enteroscopy, E-N-T-E-R-O, enteroscopy, S-C-O-P-Y. इसमें क्या होता है? A specialized scope, SCOP scope, inspect parts of the small intestine, specialized scope inspect parts of the small intestine that other test using an endoscope cannot reach. Sometimes the source of bleeding can be controlled
or treated during this test. Sometimes the source of bleeding can be controlled or treated during this test. Next test is angiography. Angiography. A contrast dye is injected into an artery. A contrast dye is injected into an artery and a series of X-rays are taken. A contrast dye is injected into an artery and a series of X-rays are taken to look for and treat bleeding vessels or other abnormalities. Last is imaging test. Imaging, I-M-A-G-I-N, imaging test. A variety of other imaging tests such as an abdominal CT scan, a variety of other imaging tests such as an abdominal CT scan might be used to find the source of the bleeding. Now, the last part is treatment. पानी पी के आया मैं मुझसे नहीं बताया वो अभी पानी पीने मैंने मुझसे नहीं बोल दिया उसको उसका लेकिन मुझसे हाय हाय मेरे भैया अरे उठ गया माते जी बाप रे क्या कह रहे भैया भैया है अब भैया तुम हो
Then the last part is treatment. अधिकतर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग अपने आप ही रुक जाती है. Often gastrointestinal bleeding stops on its own if does not then treatment depends upon where the bleeding is from. अगर ब्लीडिंग नहीं रुकती है तो पता लगाना पड़ता है ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है. So if does not, treatment depends upon where the bleeding is from. In many cases, medication or a procedure to control the bleeding can be given during some test. For example, it is sometime possible to treat a bleeding ulcer during an upper endoscopy or to remove polyps during colonoscopy. If patients have an upper GI bleeding, then it might be given. If patients have an upper GI bleeding, then it might be given an IV drug known as proton pump inhibitors to suppress stomach acid production. Once the source of bleeding is identified, then we will determine whether we need to continue taking a proton pump inhibitors.
Depending upon the amount of blood loss, depending upon the amount of blood loss and whether continue to bleed patients may require fluid through a IV drip, possibly blood transfusion. If patient is taking blood thinning medication, blood thinning medication, including aspirin or NSAIDs, then they should be stopped. So this is all about the gastrointestinal bleeding. तो काफी इतना आप लोगों के कोर्स में सफिशिएंट है बेटे. आज लास्ट लेक्चर है बेटे मेडिसिन का. जितना मैंने आपको पढ़ाया बेटे पीडियाट्रिक्स, तो खैर अलग बेटे पीडियाट्रिशियन पता नहीं कौन पढ़ाने आते हैं, मेरे को नहीं पता. कौन आते हैं बेटे? बस सर्जरी. हेलो. 2 क्लास चलती है सर. हाँ, तो कुछ उसमें लेक्चर हुए बेटे? नहीं हुए? उसको कुछ इम्पोर्टेंट बताते हैं आपको. क्या क्या पढ़ा है बताओ. नहीं होती है क्लास. साइकियाट्री नहीं होती सर. नहीं पीडियाट्रिक्स बेटे. पीडियाट्रिक्स हाँ नहीं सर, होती. नहीं होती है. नहीं पीडियाट्रिक्स में कोई क्लास हुई नहीं अभी तक क्या? नहीं सर. नहीं. अरे गॉड. तो फिर ऐसा करना, उसमें देखो इम्पोर्टेंट एक तो वैक्सीनेशन का देखो इम्पोर्टेंट है. माइलस्टोन हो गया थोड़ा. वैक्सीनेशन जरूर इम्पोर्टेंट है. मीजल्स, मम्स जानते हो बेटे? गलसुआ हैं? हाँ, हिंदी में बोलते हैं इसको कन्वुच कहते हैं. मम्स में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ मैं. मम्स क्या होता है? वायरल इन्फेक्शन होता है. कैरोटिड ग्लैंड्स होती हैं. कैरोटिड ग्लैंड में स्वेलिंग आ जाती है बच्चों में, और दोनों साइड में, एक साइड में भी हो सकता है, दोनों साइड के कैरोटिड ग्लैंड में हो जाता है, और साथ में फीवर भी होता है. पर इसमें मम्स में बेटे अब ये वायरल इन्फेक्शन है. अब देखो एंटीवायरल मेडिसिन तो कोई है नहीं, तो इसमें अपने आप ही धीरे धीरे ये ठीक हो जाता है. और पीडियाट्रिक्स में और क्या है बेटा आपके कोर्स में? थोड़ा बताओ, फिर हम आपको बताते हैं. पीडियाट्रिक्स में और क्या क्या है?
यस, देखो आगे पीडियाट्रिक्स, नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, मोटर, मेंटल, लैंग्वेज एंड सोशल, कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज। यस, कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज में हो गया आपका गैस्ट्रोएंटराइटिस, ये सब डिजीज देखनी पड़ेगी बेटे आपको। टिटनस, टिटनस जानते हो क्यों? जब चोट वोट लगती है तो क्या हो जाता है टिटनस? जी कौन सर। करता है? क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई। किस बैक्टीरिया से होता है? क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई। और टिटनस के लिए कहा गया वेयर एवर देयर इज इंजरी देयर माइट बी टिटनस, कहीं पर भी चोट लगे उसमें टिटनस हो सकता है। जरूरी नहीं कि वो चोट लोहे की ही चोट हो, अगर कोई भी एक चोट लगा है, चोट गंदा है, तो उसमें टिटनस के कीटाणु पनप सकते हैं। तो इसको देखना पड़ेगा बेटे आपको। अब इसमें साइन सिम्टम्स क्या होते हैं? सबसे पहले डिफिकल्ट इन स्वेलिंग होती है, ये मसल्स होते हैं, मैसेटर मसल्स एकदम टाइट हो जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? लॉक जा, क्या कहते हैं इसको? लॉक जा। और सबसे लास्ट कॉम्प्लिकेशन टिटनस की होती है, पूरी स्पाइन बो शेपेड हो जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बो स्पाइन हो जाती है। और कोई एग्जैक्ट ट्रीटमेंट, और एक बार टिटनस हो जाता है, देखो प्रोफाइलेक्सिस तो है कि चोट वोट लग गया उसी समय टिटनस के इंजेक्शन टिटवेक लगवा लीजिए। और अगर एक बार ये डिजीज स्टेब्लिश हो जाती है तब की वजह से कोई इलाज है नहीं। शायद ही कोई 1000 में एक पेशेंट भले बच जाए, तो इसको भगवान ही, ऊपर वाला ही बेटे बचा सकते हैं। मेरी माई मदर डाइड ड्यू टू टिटनस, इसलिए मेरे को अच्छा खासा कटु अनुभव है इसका। इसकी कोई दवा नहीं है, इसकी दवा यही है कि अपने आप को इम्यूनाइज रखें। और दूसरा इसमें देखो लिखा है माइक्रोबैक्टीरियल, चलो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कर लोगे, मीजल्स हो गया, और चिकन पॉक्स है, गैस्ट्रोएंटराइटिस। गैस्ट्रोएंटराइटिस तो जानते होगे बेटे, ये क्वेश्चन सही है। गैस्ट्रोएंटराइटिस टिक कर लो। HIV, मलेरिया, मलेरिया लिखा है इसमें। मलेरिया किस पैरासाइट से होता है बेटे? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। हाँ, प्लाज्मोडियम कितने तरीके का होता है बेटे? 4 टाइप का। 4 तरीके का। 4 कौन कौन सा बेटे? फेल्सिपेरम, वाइवेक्स, ओवेली, मलेरी। पहले कौन सा? वाइवेक्स सबसे कॉमन हो गया, वाइवेक्स हो गया, मलेरी, ओवेल एंड फेल्सिपेरम। और ट्रीटमेंट क्या है मलेरिया का, वाइवेक्स का? कौन है? इसमें बस एक, HCQ। इसमें एक चीज बता दें मेरे को, क्लोरोक्विन कितनी मात्रा में देते हैं? अच्छा नहीं पता होगा तो टाइम बर्बाद करने को फायदा नहीं है। मैं आपको एडल्ट डोज बता देता हूँ। मैं इसमें 12 गोली क्लोरोक्विन का कोर्स होता है, रट लो। ये वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, क्या इसमें वाइवा में क्या इसका आंसर है? 12 टेबलेट्स ऑफ क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन 12 गोली का कोर्स होता है टोटल। कैसे 12 गोली देते हैं? इकट्ठी नहीं, ये नहीं कि लो इकट्ठी खा ले 12 गोली, 4 गोली एक साथ। 4 टेबलेट स्टेट, 2 टेबलेट आफ्टर 6 आवर, एंड देन 1 BD फॉर 3 कॉन्जिक्यूटिव डेज। यानी एक साथ जैसे आज 4 गोली खिला दी, फिर 6 घंटे बाद शाम को 2 गोली खिला दी, तो 6 गोली आज हो गई, बच गई 6, फिर 1 गोली सुबह शाम, कल परसों और नरसों। समझ में आया? नहीं आया? जी सर। 12 गोली का कोर्स है, पहले दिन 6 गोली खत्म कर दी, आधी दवा खत्म कर दी। 4 गोली स्टेट, 2 गोली 6 घंटे बाद, फिर 1 गोली सुबह शाम अगले 3 दिन तक, कल परसों और नरसों। दिस इज द एग्जैक्ट ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। अब देखो ये इसमें इंपॉर्टेंट है, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम बेटे इंपॉर्टेंट है। WHO, पल्स पोलियो, ये कई बार आया है।
पल्स पोलियो नोट करो, ये शॉर्ट नोट्स ही आते हैं इसमें। पल्स पोलियो, विटामिन थोड़ा सा देख लेना। विटामिन तो शायद कराया है मेरे ख्याल से मैंने आपको, क्यों? यस सर, हाँ कराया है। हाँ, तो बस कोई दिक्कत ही नहीं है। और इसमें लिखा है सेरिब्रल पाल्सी, ये आता है कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं। पोलियोमाइलाइटिस देखो इम्पोर्टेंट है। पोलियोमाइलाइटिस में कौन सा सेल डैमेज होता है, मेरे को इतना बताओ। सर एंटीरियर हॉर्न सर। एकदम सही आंसर है, एंटीरियर हॉर्न सेल्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। एंटीरियर हॉर्न सेल्स ऑफ द, क्या नाम है बेटे, उमा? वेरी यस गुड। एंटीरियर हॉर्न सेल्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होते हैं बेटे, वो पैदा, और उसी की वजह से बेटे पोलियोमाइलाइटिस होता है बेटे। और ये जो लिखा चाइल्डहुड रूमेटिज्म, इसमें यानी रूमेटिक फीवर आ गया, रूमेटिक आर्थराइटिस आ गया। एक तो कोई ये कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज, रूमेटिक हार्ट डिजीज, ये थोड़ा सा देख लेना भैया। अच्छा, और कुछ नहीं समझ में आए हमसे पूछ लेना, बिना किसी टेंशन के। जी सर। हाँ, साइकेट्री में भाई अपना 5 साल के पेपर देख रहे हो, क्या क्या आया, बस वही 1-2 क्वेश्चन आते रहते हैं इसमें। शॉर्ट नोट्स ही आते हैं बेटे, अधिक तो आता नहीं है इसमें। आज देखो लास्ट लेक्चर है बेटे, मेडिसिन का कोर्स खत्म हो गया बेटे। शायद मेरे ख्याल से कुछ बचा तो है नहीं, कुछ बचा है बेटे? मेरे ख्याल से कुछ नहीं बचा। नहीं सर। कुछ बचा हो बता देना, मैं आपको उसके नोट्स व्हाट्सएप पे डाल दूंगा। ना तो मेरा अनुमान है कोई बचे, लेकिन फिर भी इसके अलावा कोई दिक्कत पड़े आप कभी भी किसी भी समय मेरे को फोन कर सकते हैं। ओके बेटे, थैंक यू बेटे, गॉड ब्लेस यू बेटे, खुश रहो, एक खूब अपना लगा इम्पोर्टेंट। लगा के बेटे मेहनत करना। एग्जाम कभी भी हो सकते हैं, है ना। और अब देखो इतनी आप लोगों ने मौज मस्ती कर ली है, अब अपना प्रॉपर वे में थोड़ी पढ़ाई शुरू कर दे बेटे, है ना। जनरल मेडिसिन में सर। पास होना भी देखो जरूरी है। अच्छा बेटे, ओके सर बाय। हाँ बोलो पूछो। जनरल मेडिसिन में इम्पोर्टेंट बता दीजिएगा अगली क्लास में। एक कभी ले लीजिएगा क्लास। देख लेंगे बेटे, सोच लेंगे बेटे, वैसे हम देखो बीच बीच में इम्पोर्टेंट हम सब बताते ही रहते हैं बेटे आपको, है ना। इम्पोर्टेंट देखो आपको बताते ही रहते हैं बेटे, क्या इम्पोर्टेंट है क्या अनइम्पोर्टेंट है। हम्म, चलो बेटे, बाय बेटे, गॉड ब्लेस यू बेटे, खुश रहो बेटे। थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ, बाय। परवेज, हेलो।